evening, everyone. Myself, Dr. Priyanka Lokre, and I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to our Thursday session, Guruji Ke Saath Guruvar. We started this series of 100 webinars last year in June, and today is our under mentorship of Dr. Liaquat Lamole sir. And today is our 65th lecture of the series. It's my pleasure today to welcome our today's speaker, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. She is the founder admin of our Telegram group, Ignited Minds by PHF. As we all know, she is handling our group since long time very diligently. Dr. Mansi is graduated from Srimati Venubai Yashwantrao Savan Homeopathic Medical College, Kolhapur. And she is practicing since last 20 years and practicing homeopathy since last 7 to 8 years. And she's also teaching in the same college where she studies, that is Srimati Venubai Yashwantrao Savan College. And she has been sharing daily rubrics since last 5 years on various social platforms like Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. So friends, please welcome Dr. Mansi Patil with a big round of applause. I request Dr. Mansi Patil to take over. Thank you. Welcome, Mansi. Thank you. Thank you. So thank you. Thank you, Priya. Thank you, sir. Because of whom I would like to thank you, Dr. Liaquat sir, first of all, because sir has created this wonderful platform so that all the homeopaths from different method of practicing, they come here, and we are learning from so many methodologies in homeopathy, and we are getting benefited through these lectures. So thank you, sir, and thank you, my PHF team as well. So today's topic is homeopathic management of skin diseases. So last year I have discussed about the skin diseases. That time we discussed 2 cases of ringworms and psoriasis, I think. So today again, I want to share one case. It is a very simple case, but still the case was complicated actually. It was a case of weeping eczema. So we will start with the case, then we will discuss a little about the psychodynamics, and then about the remedy. Okay, so the case was like background थोड़ा सा ऐसा था कि उसकी जो patient है, he is a male patient about I think 30 or 40s के बीच में, and he was having this eczema over his legs under the knees, मतलब पूरे नी के नीचे पूरे उसके दोनों पैर पूरे swollen थे, and there was discharge. और ये जो पेशेंट है वो मुंबई में रहता है, लेकिन उसकी जो वाइफ है, शी इज फ्रॉम कोकण. सो वहां पे उनकी मदर इन लॉ है, अकेली रहती है. तो जब से वो बीमार है ये पेशेंट, तो उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि उन्होंने वहां पे बहुत सारे ट्रीटमेंट करे अपने मुंबई में, लोकल जीपीज को दिखाया, उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब जगह दिखा के फिर वो मतलब वो परेशान हो गए कि अभी बस नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. तो उसकी सासू माँ ने उनको बोला था कि तुम लोग इधर आ जाओ गांव में, मेरे एक पहचान वाले डॉक्टर है, मतलब माय हस्बैंड, तो उनको हम दिखाएंगे और देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे. क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिस में उनका मतलब बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत मतलब उनके सब फैमिली फिजिशियन एज है मेरे हस्बैंड. तो वहां पे वो बोले कि मैं उनका एक ओपिनियन लूंगी, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका आगे क्या करना है. तो फिर उन्होंने उनको बुलाया, मुंबई से गांव में बुलाया. तो हम लोग कोविड के टाइम पे वहां पे थे, नहीं कोविड के टाइम का पहले केस है, 2018 आई थिंक. तो वो लोग आए, उसकी सासू माँ लेके आई, और वो भी आए कब आए, रात के
आई थिंक 8 बजे ऐसा कुछ टाइम था रात का। तो जब सब पेशेंट मतलब हो गए, उसके बाद में वो लोग आए। मतलब वहां पे कैसे गांव में 6 बजे के बाद ज्यादातर लोग बाहर निकलते नहीं है। तो उसके बाद ये लोग आए। तो आए फिर उनके सासू माँ ने वो सब हिस्ट्री बताई, सब मेडिसिन वगैरह दिखाए कि देखो इतने सारे मेडिसिन अभी चल रहे हैं, सब हो गया। मतलब सब स्किन स्पेशलिस्ट जितने भी हम लोग पॉसिबल था उतने सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया। और वो सारे स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट इतने मतलब ऐसे बंडल था उनके पास मेडिसिन का। लगाने की मेडिसिन अलग और फिर खाने वाली मेडिसिन अलग, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हो चुकी थी। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं क्या है। तो हम लोग ने उनका केस लेना स्टार्ट कर दिया। तो वो बंदा जो था वो बैठे थे ऐसे ही। तो पहले उनको पूछा कि क्या हुआ, कैसे मतलब स्टार्ट कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे छोटे छोटे थोड़े से फोड़े आए थे और फीवर आया था 15-20 दिन पहले। नहीं, उससे भी पहले 1 महीना पहले ऐसे होके गया। तो छोटे छोटे शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद में फीवर सबसाइड हो गया, लेकिन फिर जो है ये धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ने लगा। और फिर उसमें से ये ऊजिंग भी होने लगा। और ऐसे मतलब बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रखा था कि उनको पैर में जैसे ऐसे वजन लग रहा था। और वो चलना भी शायद उनको मुश्किल लग रहा था। तो मैंने बोला इतना सब हो गया तो फिर कैसे, मतलब आपने मैनेज कैसे किया। तो बोले नहीं मैनेज क्या, मैं तो मतलब ट्रीटमेंट चल ही रहा है लेकिन फर्क नहीं गिर रहा है। तो इसके लिए ये सासू माँ ने बोला कि हम लोग इधर जाएंगे और देखेंगे। बोला ठीक है। तो क्या है आपको, कैसे मतलब क्या टेंशन लग रही है उसकी वजह से। तो पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, टेंशन कुछ नहीं, ये टेंशन क्या है, कुछ नहीं टेंशन कुछ नहीं। तो मैंने बोला उसके उसको लेके कुछ चिंता होती है या फिर कुछ आप परेशान हो उसकी वजह से। तो बोले कि नहीं नहीं, उसके लिए कुछ मुझे टेंशन नहीं है। और है मतलब चल रहा है ऐसे ऐसे बोले। और उनका जो बात करने का तरीका था, जैसे बैठने का तरीका था, तो ऐसे ऐसे बैठे थे ऐसे। और जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो बोलते थे कि ऐसे ऐसे करके जवाब देते थे। तो मुझे पहले लगा कि शायद वो टिमिड है या फिर नहीं जवाब दे पा रहे। तो फिर भी मैंने 2-4 सवाल ऐसे किए, मतलब थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल किया कि कैसे है घर में क्या वगैरह ऐसा पूछा। उसके बाद थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हुए। लेकिन फिर भी जब भी सवाल पूछूं तो उनका वो रहता ही था, वो जो जेस्चर है वो। तो फिर दूसरा और पूछा उनको कि आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि वो डिसीज के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि वो थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा कंफर्ट करके फिर अलग से पूछना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, काम क्या करते हो। तो बोले कि मैं स्कूल में प्यून है। बोला ठीक है। और फिर कहाँ रहते हैं आप। तो बोले मैं मेरी काकी के पास रहता हूँ। काकी मतलब आंटी के पास रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आंटी के पास रहते हैं, तो आपकी शादी वगैरह हो गई। तो बोले हाँ शादी तो हो गई। और मैंने बोला बच्चे, तो बच्चा एक बच्ची है मेरी। और मैंने बोला फिर बाकी कहाँ है, मतलब फैमिली कहाँ रहती है आपकी। तो बोले कि फैमिली भी मुंबई में रहती है। तो मुझे वो जवाब थोड़ा सा उनका एकदम से थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि ऐसे क्यों बता रहे हैं। कि पहले तो बोला कि मैं काकी के पास रहता हूँ, फिर बोले मैं मेरी फैमिली भी उधर ही रहती है। तो मुझे लगा शायद उनकी फैमिली, जैसे वो कोकण में ट्रेडिशन है कि फैमिली इधर रहती है और हस्बैंड उधर मुंबई में जॉब करते हैं। तो बोले कि नहीं वो भी उधर ही रहती है। तो थोड़ा सा कंफर्ट उनको लगा। फिर वो बताने लगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैंने बोला उनको कि फिर लेकिन फिर भी आप कैसे, मतलब पेन होता है क्या होता है। तो बोले पेन तो कुछ नहीं होता है, इचिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन वो थोड़ा सा भारीपन है उसमें, पैरों में थोड़ा सा भारीपन है। बोला ठीक है, और क्या तकलीफ है आपको। तो बोले कि नहीं, मतलब फिर भी ऐसे लग रहा था, मतलब उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि हाँ टेंशन तो है कुछ ना कुछ। लेकिन उनको बताने में
पता नहीं कुछ ही झिझक जैसे लग रहा था। तो मैंने बोला कि इसकी वजह से आप कैसे, मतलब क्या सोचते हो इसको लेके? तो बोले कि सोचता कुछ नहीं हूँ, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि इतना सारा ट्रीटमेंट हो गया है, तो अभी मैं क्या, मतलब क्यों नहीं ठीक हो रहा ये ठीक हो जाना चाहिए था। इतने सारे अगर ट्रीटमेंट हो गए हैं तो ठीक हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? और फिर से वही जेस्चर उनका, तो मतलब वो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ, तो मतलब आई कांट एक्ट लाइक दैट, बट वो जो था जेस्चर, वो तो उनका कंटिन्यूअस था। और तो मैंने बोला ठीक है फिर। हम्म। तो एक ही उनका कंसर्न इतना ही समझा मुझे कि उनको ये लग रहा है कि ये ठीक होना चाहिए, बस उतना ही है। दूसरा कुछ उनका कंसर्न नहीं था। सारा जो रूब्रिक्स मैंने जो लिए, या फिर जो भी ये है, वो सिर्फ उनके जेस्चर या फिर उनका जो बैकग्राउंड, और जो हिस्ट्री उनकी वाइफ से, और उनकी जो है मदर इन लॉ, उनके तरफ से जो भी हिस्ट्री मिली वो सब मिला के हमने दे दी। क्योंकि वो बंदा बहुत माइल्ड लग रहा था, मतलब माइल्डनेस रूब्रिक तो लिया मैंने पक्का, माइल्डनेस वाली रेमेडी है ये समझ लो। तो लेकिन जब वो लोग, तो हम लोगों ने उनको बोला कि आप थोड़ा सा बाहर रुको, हम उनके वाइफ को पूछते। तो उनको पूछा कि इनका स्वभाव कैसा है। तो बोले कि ये तो घर पे तो बहुत गुस्सा करते हैं, बाहर तो बहुत अच्छा है, मतलब बाहर काम की जगह पे बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, किसी के साथ कुछ नहीं है उनका, लेकिन घर पे अगर गुस्सा आए तो बस तोड़ फोड़ भी कर देते हैं, इतना गुस्सा उनको आता है, लेकिन दिखाते नहीं है वो गुस्सा किसी को। और घर में ऐसा तोड़फोड़ वगैरह करते हैं, और चिड़चिड़ भी करते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब उनको देख के विश्वास भी नहीं हुआ कि ये बंदा ऐसे करता होगा घर पे। तो ये सब जो है हिस्ट्री, तो ये सब मिला के कुछ रुब्रिक्स हमने लिए, और उस पर से एक रेमेडी दी। और उसके बाद में जो रिजल्ट मिला था, तो वो लोग वापस, मतलब उसके तीसरे दिन हमने बोला था उनको कि आप फॉलो अप करो और हमको दिखा के फिर आप मुंबई जाओ। लेकिन ऐसा हुआ कि वो लोग वापस हमारे पास आए नहीं फॉलो अप के लिए। तो हमने वो सब, सारी मेडिसिन उनकी थी तो वो सब बंद करवा दी, और बोला कि आप पहले हमको फॉलो अप दो और उसके बाद आप जाओ। लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं आया मैसेज। तो थोड़े दिन के बाद मैंने उसको उनकी वाइफ को बोल के रखा था कि जो भी मिलता है आपको, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, ईचिंग होती है, कुछ भी होता है, आप मुझे कांटेक्ट करो। तो उन्होंने मुझे फोटो भेजी थी उनकी। तो एक या शायद 1 महीने बाद की होगी, 1-2 महीने की बाद की फिर फोटोज उन्होंने भेजी थी कि वो जो था एक्जिमा, वो तो पूरा निकल गया था। खाली वो पैचेस थे अपने पैरों पे, तो ब्लैक पैचेस। और उसके बाद तो वो फिर उनके स्वभाव में भी बहुत फर्क पड़ा था। मैं ये पिक्चर आपको सेंड करती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। शेयर करती हूँ। समझ में आ रहा है? केस समझ में आ रहा है? एनीवन? केस समझा ना? हेलो? हाँ मैडम हाँ, समझ में आ समझ रहा है। में। आवाज आवाज आ रही है ना? यस। नहीं, सब जी मैडम। साइलेंट हो गए तो मुझे लग रहा है मैं अकेली बात कर रही हूँ। दिख रहा है पिक्चर? हेलो? हाँ, दिख रहा है। जी मैडम दिख रहा है। Okay. So this was the first while taking the case. ये पहले वाला पिक्चर है। ये फॉलोअप वाला है, फर्स्ट फॉलोअप 13 मार्च का है।
दिख रहा है ये? हाँ दिखता है दिखता है। जी मैडम दिख रहा है। ओके। एक मिनट, हाँ, और एक पिक्चर है वो उन्होंने भेजा है फॉलोअप का, कि उसके बाद कैसे मतलब उनके स्वभाव में भी फर्क पड़ा है, तो वो लिख के भेजा था उन्होंने। ये दिख रहा है? हेलो? हाँ हाँ दिख रहा है। जी मैडम दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है, उनकी वाइफ ने लिखा है। किसका ऑडियो चले, प्लीज म्यूट कीजिए। देखो यहाँ पे ना मराठी में लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। आता त्यांची तब्येत एकदम बरी आहे, स्वभावात पण खूप बदल झाला आहे, चांगले वाटते आता। दैट मीन्स उनके स्वभाव में भी बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, बदलाव आया है। जो कि पहले बहुत गुस्सेलो वगैरह थे, तो वो भी उनका स्वभाव भी चेंज हो गया वो अपनी मेडिसिन से। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, कुछ भी आपको समझा है केस या फिर कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद में रेमेडी देखेंगे। हेलो? हेलो? बोलना है किसी को? प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जिसको भी एनालिसिस देना है। जो भी कुछ भी समझा हो, रेमेडी नहीं समझी हो कोई बात नहीं, लेकिन आप एनालिसिस बोल सकते हो, रूब्रिक बोल सकते हो, या भी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग या फिर जेस्चर का अंडरस्टैंडिंग, जो भी है, कुछ भी आपको समझ में आया हो। मैडम ये लाइकोपोडियम लग रही है। अच्छा, क्यों? ये टिमिड है और ये जो है स्ट्रेंथ फॉर फैमिली फैमिली है और हार्ड फॉर सुपीरियर और वो नहीं हार्ड फॉर इंफीरियर? इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। मैडम कैसे? दिखाई दे ऐसे क्यों ये लगा बाहर आपको? ये बाहर ऑफिस में वहाँ इसका व्यवहार अच्छा है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ तो घर में जो है वो अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। और कोई? हेलो मैम। हेलो? हेलो। हाँ बोला। ये पेशेंट घर में तो बहुत झगड़ा करता है, लेकिन वो एकदम शांत झगड़ा बैठा नहीं करता है, तोड़ फोड़ करता है, मतलब गुस्से में। गुस्से में। हम्म लेकिन आपके सामने वो उसका नेचर पूरा उल्टा था। हम्म मुझे दो ही रूब्रिक समझ में आए, हम्म अवेयरनेस बशफुलनेस फ्रॉम हम्म एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर। एंड वो आंटी के घर भी कह रहा है, ऐसा बोला ना, मुझे बड़ा हम्म। टकर लगा। हाँ हाँ, बराटा का जैसे लगा, मुझे भी लगा था सेम बराटा का, मतलब चाइल्डिश था ना उनका जो आंसर देने का तरीका था, थोड़ा सा ऐसे चाइल्डिश लगा मुझे भी। और कार्बोवेज भी आ रहा है। कार्बोवेज क्यों? क्यों कार्बोवेज लगा आपको? कार्बोवेज का क्या लगा आपको? वही रेपर्टी चार्ट में आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। करने से और ये प्रिविलेज में है ना।
अच्छा। वो है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसके लिए क्या ले सकते हैं दूसरा और रुब्रिक है लेकिन दिखा नहीं रहा है, या फिर कुछ अलग दिखाने की कोशिश? Why not hypocrisy? हिपोक्रेसी क्यों सर? घर में ऐसा बाहर वैसा है इसके लिए? हाँ, दो रूप है ना इसके, दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग है, तो हिपोक्रेसी भी सोच सकते हैं ना। हाँ, हिपोक्रेसी सोच सकते हैं, लेकिन वो मतलब वो वहां पे बाहर जाके वो बताता नहीं है ना कि मैं ऐसा हूँ, अच्छा हूँ वगैरह। हाँ हाँ, वो भी है। हम्म, मतलब हिपोक्रेसी में वो दिखना चाहिए कि मैं हूँ ऐसा हाँ अलग। हाँ ये दिख नहीं रहा है इस केस में, हाँ। बराबर है। हम्म। मतलब वो दाम्भिक And- रहते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि मैं बाबा संत हूँ, बाबा हूँ, मैं ये ऐसा कुछ नहीं करता, गंदा वंदा ऐसा कुछ नहीं करता, और वो जाके बराबर है, ये करते हैं, तो वो लोग। बराबर है। और पर्सन कैसे लगा आपको? माइल्ड बोला मैंने, माइल्डनेस तो ले सकते हैं हम लोग, माइल्डनेस रूब्रिक लिया था मैंने भी। उनका बात करने का तरीका, मतलब जैसे मुझे तो फील कैसे आया था कि जैसे हम लोग लड़की देखने जाते हैं ना, और वहां पे वो लड़की कैसे बात करती है, ऐसे ऐसे, मतलब पुराने जमाने में, अभी नहीं ऐसे लड़कियां बात करती। तो टिमिडिटी बेस्टफुल हो गया ना ये। टिमिडिटी, हाँ, लेकिन बैशफुल नहीं है, सिर्फ टिमिडिटी। सिर्फ टिमिडिटी। बैशफुल भी उसके आगे थोड़ा सा और डीप वाला रुब्रिक चाहिए, मतलब उसके क्या बोल सकते हैं, पर्सनालिटी का रुब्रिक क्लोज है। टिमिडिटी भी है, टिमिडिटी भी मैंने लिया था, क्योंकि देखो वो बंदा खुद नहीं आया, या फिर उसने खुद वो कहीं जाके ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, वहां पर भी आंटी करा रही है ट्रीटमेंट, यहाँ पर भी मदर इन लॉ करा रही है ट्रीटमेंट, तो और वो लोग जो है शाम को आए, मतलब कि जब कोई नहीं रहेगा तब हम लोग आएंगे, ऐसा था उनका। तो वो टिमिडिटी वाला तो लिया मैंने, लेकिन टिमिडिटी का सब रूब्रिक क्या लेंगे? पब्लिक अपीयरिंग इन ले सकते हैं। यस यस, वही लिया था मैंने, टिमिडिटी, पब्लिक अपीयरिंग अबाउट इन, एंड माइल्डनेस। अभी दो रूब्रिक तो मैंने ही दे दिए, अभी बोलो। देखो टेंशन तो है उसको पक्का। और किसी को ऐड करना है कुछ? उसका कॉन्फिडेंस भी लो लगा मैडम। हाँ, कॉन्फिडेंस तो लो है। अरे जो बंदा शादी होके आंटी के घर में रह रहा है, उसका कॉन्फिडेंस तो। इंग्लिश। और क्या आ रहा है रेमेडी, कहाँ तक किसी को कुछ लग रहा है? माणिक सर, रेमेडी काय वाटते? सिलिशिया आता है। सिलिशिया, ओके। बरायटाकार वाटली मला. 12% ओके, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट है।
सर बोलतात क्लोजेस्ट रेमेडी टू बराटा कफ. कौन है क्लोजेस्ट? इतनी बड़ी हिंट भी दे दी मैंने आपको. तो फिर कलकेरिया कार्ब रहेगी. बराटा का क्लोजेस्ट कलकेरिया. स्पाइनलेस रहेगा तो कलकेरिया कार्ब, बरहेटा कार्ब, सिलिशिया. स्पाइनलेस मतलब खुद का कुछ है नहीं ना, वो दूसरे के दम पे ही जी रहे ना. लेकिन कर रहा है ना, जॉब कर रहा है अपना. हाँ वो भी है. पूजा मैम अपने अपने पैसे से अपने बीवी बच्चों को ये कर रहा है ना. लेकिन हाँ. मुंबई में कैसा है ना, वो हम लोग मतलब एक ही तरफ से नहीं देख सकते, वहां पे जगह का प्रॉब्लम रहता है. तो वो हाँ लोग वो भी है. किसी के यहाँ पे जाके एडजस्ट 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 भी कर एडजस्ट सकते हैं, बराबर है. कर लेते हैं. तो वो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि उनके भरोसे पे रह रहे हैं. नहीं तो फिर वो जॉब भी नहीं करता ना, अगर वो लोग संभालते रहते तो. रेपर्टरी है किसी के पास? है तुम्हाला. डालो रुब्रिक टिमिडिटी पब्लिक अपियरिंग अबाउट इन. माइल्डनेस. सिलिशिया एम्ब्रा कॉक्युलस लाइकोपोडियम प्लम्बम आरमोरनाइट किपरम फॉस्फोरिक. वो जो पहला रुब्रिक तो मिस हो गया अपना. मतलब वो जो बोल रहा है, पहले स्टार्टिंग में जो बोला था उन्होंने कि नहीं मुझे टेंशन कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में जाके उनके चेहरे पे भी दिखा वो टेंशन, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, डर. अफेक्टेशन लिखा है. अफेक्टेशन हो गया, फिर अफेक्टेशन हो गया. यस, अफेक्टेशन लिया. और वो एक्सप्रेशन का नहीं बताया किसी ने, वो जो मतलब मैंने बोला वो. शर्माता कौन है? एक्वार्निस. मैम थूजा हो सकती है क्या? तुझा क्यों? वो टिमिड है, हम्म. पब्लिक अपेयरिंग में भी थूजा है तुझा मैम, है. और कॉन्फिडेंस भी उसका लो है. हम्म. बापू सर माइल्डनेस डाला क्या रुब्रिक? फिर मैडम 4 मिनट आए. सिलिशिया लाइकोस टाइप ऑफ पूजा और वो जो तोड़ फोड़ करता है उसका? डिस्ट्रिक्ट और एंगर भी, स्टेफिसिग्रिया भी आ रहा है, स्टेफिसिग्रिया. स्टैफिसाइग्रिया का एंगर भी वैसा होता है. हाँ, स्टेफिसिग्रिया भी कवर कर रहे सारे रूप. ओके. और एक रुब्रिक बताओ लेकिन. इफेमिनेट. यस. है क्या इफेमिनेट में स्टेप? कंप्लीट में है स्टेपिंग. स्टेफिया है ना इफिमिनेट में. मर्फी में रुब्रिक है फेमिनाइन मेन. यस मैम. उत्तलका सर ने भी बोला है फेमिनिन मेल स्टेपिसाइड. फेमिनाइन मेन. तो मतलब मुझे ये रुब्रिक बहुत अच्छा लगता है मर्फी का, क्योंकि उन्होंने वो मतलब पर्सनालिटी को वो डिस्क्राइब किया है ना, फेमिनाइन मेन, मतलब जो मेन है फेमिनाइन दिखते हैं. ठीक है. सो द रेमेडीज, यस, स्टेफिसाइग्रिया. स्टेफिसाइग्रिया देने के बाद आप लोगों ने रिजल्ट तो देखा. बहुत मतलब हम लोग को भी लगा था कि नहीं होगा कुछ, पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा स्केप्टिकल थे हम लोग भी स्टेप के बारे में. लेकिन क्लोजेस्ट हमको सर हमेशा बोलते हैं ये स्टेफिसाइग्रिया के बारे में, बराटा का की क्लोजेस्ट रेमेडी स्टेप होती है, क्योंकि वो जो बिहेवियर रहता है ना, चाइल्डिश एंड क्या बोलते हैं उसको, absent minded जैसे
तो वो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा सिमिलर रहता है स्टेफिस एग्रिया और बराटा का। तो बराटा का मतलब वो मुझे पहले ही जैसे उनका ये लगा था, एम्बेरसमेंट भी था उनका, लेकिन वो जेस्चर वाला था तो ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि एम्बेरसमेंट कैसे था उनका, लेकिन एम्बेरसमेंट भी भरपूर था। तो ये सब रुब्रिक मिला के स्टेफिस एग्रिया दिया था। तो थोड़ा सा हम लोग स्किन का साइकोडायनामिक्स देखते हैं कि स्किन के डिसीजेस क्यों होते हैं। तो स्किन इज आवर boundary, our covering through which we see the world and the world sees us. Okay, so यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं कुछ, मतलब कि जैसे एक पॉजिटिव ये भी रहता है स्किन का कि पॉजिटिव टच है, तो उसकी वजह से हम लोग एक लव है, केयरिंग है, जैसे कडल करते हैं, छोटे बच्चों को उठाते हैं, किस करते हैं, उनको खिलाते हैं अपनी गोद में वगैरह, तो उससे वो पॉजिटिव बाइंडिंग होती है, वो एक कम्युनिकेशन का जरिया होता है स्किन के थ्रू। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक निगेटिव टच होता है, जैसे कि बहुत मतलब जैसे बहुत सारी लेडीज रोज अपने मतलब जहाँ पे काम पे जाती है या कहीं पर भी है, तो वहां पर उनको फेस करना पड़ता है वो टच, जो कुछ लोग होते हैं गंदे लोग, तो वो करते रहते हैं ऐसे। तो वो जो टच रहता है वो दैट ब्रिंग्स ऑन द कन्फ्लिक्ट की गंदा टच रहता है, तो उसकी वजह से वो दिमाग में रहता है। एंड बाउंड्री एज अ, जैसे कि स्किन हमारी बाउंड्री है अपने और वर्ल्ड के बीच में, तो वहां पर भी जब कोई अपनी ये बाउंड्री क्रॉस करता है, घुसने की कोशिश, जैसे हम बोलते हैं कि ये बाउंड्री से अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से भी वो स्किन क्राउल होने लगती है। और दूसरा है जीएनएम के हिसाब से साइकोडायनामिक्स क्या है, तो अटैक कॉन्फ्लिक्ट वो बोलते हैं कि अटैक जब भी होता है तो उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, उसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि गेम में भी अटैक होता है, या फिर किसी के सर पे अटैक किया है, या किसी को कुछ होस्टाइल वे में या क्रिटिसिज्म किसी को किया है, सो दैट इज ऑल्सो एन अटैक एज अ कन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू जीएनएम। ओके, सो अगेन दूसरा और एक है जो पहले भी मैंने शेयर किया था, लीज बॉर्ब्यू का, कि मैं पढ़ के बताती हूँ आपको ये। उन्होंने कहा है अपने बुक में कि ऑल स्किन डिसऑर्डर्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ शेम एंड सेल्फ depreciation. You pay too much attention to how others see you and to their judgments of you. You tend to identify with what is outside you rather than simply being yourself. मतलब हम लोग ज्यादातर दूसरों के हिसाब से अपने आप को देखते हैं, ना कि हम लोग जैसा सोचते हैं कि दुनिया कैसी है, उसके उल्टा हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, तो उसकी वजह से भी स्किन डिसीजेस होते हैं, ऐसा लीज बॉर्ब्यू का मानना है। ओके, और जहां तक अपने ऑर्गेनॉन का सवाल है, तो वहां पर भी डॉक्टर हैनेमन ने 18 एफोरिज्म्स लिखे हैं दिस अबाउट दिस स्किन डिसऑर्डर्स that we have discussed in the last lecture also. Okay, तो वहां पर भी उन्होंने कहा है कि स्किन डिसीज अगर है तो उसको खाली स्किन डिसीज या लोकल अफेक्शन समझ के उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको हमको होलिस्टिक वे में, इसका मतलब है जो भी उसकी पेशेंट की मेंटल स्टेट है ड्यूरिंग द डिसीज, व्हाट एवर डिसीज ही इज हैविंग, तो वो कंसिडर करके ही हमको ट्रीटमेंट देना है। Okay, so this has written in the organon. Aphorism numbers I will tell you, 185 to 203. So these are more than 18 aphorisms written about local maladies or local affections, what Dr. Hahnemann has said. Okay, so this is about the psychodynamics of
skin disorders. So let us रिवाइज स्टेफी एग्रे के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। किसका चालू है? प्लीज म्यूट कर दीजिए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिसते. Yes. So this is a small gist of Staphylococcus aureus. So basic nature, Staphylococcus aureus का basic nature जो है soft, gentle and shy. तो माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, क्वाइट डिस्पोजिशन, पोलाइट टू पोलाइट, मतलब इतना ज्यादा पोलाइट, इतना ज्यादा मीठा कि यस सर, जी सर, हाँ सर, नहीं सर, तो वो जो रहते हैं लोग, दैट इज टू पोलाइट. आर्ग्यूइंग, नॉट आर्ग्यूइंग, एंगर, नेवर एंग्री, तो इसमें तो सिंगल स्टेप है आई थिंक. So next is this, we all know Staphylococcus aureus has lot of emotions which he keep inside. There are multiple griefs throughout the life, but he keeps everything inside. मतलब ये लोग ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को. Years after years, but still he remains sweet, no bitterness inside. This differs it from natrum mur, where there is a lot of bitterness. So natrum mur को हम लोग जानते हैं कि embittered हो जाता है, मतलब उसमें कड़वाहट आ जाती है. लेकिन Staphylococcus aureus का ये रहता है कि whether he is in the same situation, वो होने के बाद भी ये लोगों में स्वीटनेस रहता है. मतलब वो लोग दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे या फिर किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ये रहता है इनका. ठीक है. सो यील्डिंग वाला या फिर जेंटल माइल्ड वाला जो है, उसके साथ में जाता है पल्सेटिला. पल्सेटिला भी कैसे है, लेकिन माइल्ड है, यील्डिंग है, सॉफ्ट है, सब कुछ है सिमिलर. लेकिन पल्सेटिला को कंसोलेशन अच्छा लगता है और स्टैप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कंसोलेशन. एक बेसिक डिफरेंस है. कंसोलेशन एग्रेवेशन, वीपिंग, कंसोलेशन एग्रेवेशन, एडमोनिशन एग्रेवेशन. सो ये बेसिक डिफरेंस है. अगेन लॉट ऑफ इमोशंस दैट आर सप्रेस्ड, जैसे एंगर भी सप्रेस्ड रहता है. सारे इमोशंस उनके सप्रेस्ड रहते हैं क्योंकि दे आर डिग्निफाइड टू फाइट, सो डिग्निफाइड टू फाइट दैट मीन्स जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि ये लोग स्टाफ का जो पेशेंट रहता है वो हमेशा क्लिनिक में ऐसे आके बोलेगा, मतलब अगर किसी रिक्शा वाले के साथ उनका कुछ हो गया, या फिर ट्रक ड्राइवर, अपना बस ड्राइवर है जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे हैं रोज, और उनके साथ अगर इनका कुछ हो जाता है तो उनको अगर पूछो कि क्यों, आपने क्यों नहीं उनको जवाब दिया, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, फिर उसमें और मुझ में क्या अंतर रह गया, वो तो बस वाला है, वो तो रिक्शा वाला है, वो तो भिखारी है, वो तो ऐसे बोलेगा ही. लेकिन अगर मैं भी उसको बोलने लगूं, उसके मुंह लगूं, तो फिर उसमें और मुझ में क्या अंतर रहेगा. सो दैट इज व्हाई दे आर डोंट फाइट, दे आर सो डिग्निफाइड. Dignified, confidence, want of confidence, cowardice, opinion without courage to express own, injustice cannot support. सी. लेकिन ये भी एक शेड है कि वो लोग इमोशंस अपना जो भी है सब कुछ दबा के रखते हैं, मेंटली या फिर वर्बली वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं. लेकिन फिर उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो एंगर है वो कहीं ना कहीं बाहर आना होता है. तो वो इस तरह से बाहर आता है कि वो सब उथल पुथल कर देंगे, घर पे सारी चीजें तोड़ फोड़ कर देंगे, क्योंकि उनको वो एंगर निकालना होता है. तो ये सारे रूब्रिक्स वो स्टेज के हैं कि थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, एंगर थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, ब्रेकिंग थिंग्स,
breaking things desire to, then fire want to set on the things. So these are the rubrics of this anger shed, कि anger ऐसे express होता है उनका. और एक रहता है, एक ये साइड है और दूसरा एक ये साइड है कि गिल्ट रहता है उनको, सेक्सुअल गिल्ट है. मटरा मेडिका में दूसरी कोई रेमेडी नहीं है कि जिसको इतना सेक्सुअल गिल्ट है. तो यहाँ पे ये लोगों का मैस्टरबेशन बहुत बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कि फैंसीज में उनकी फैंसीज है इसके बारे में, जो भी सेक्सुअल डिजायर है या फिर जो भी है, तो ये लोग एक्सेसेस में जाते हैं, मतलब ज्यादतियां. लेकिन यहाँ पे ज्यादतियां नहीं है, ये लोग खुद पे ही इतना मैस्टरबेशन के या इसके वो जो भी अननेचुरल है चीजें, तो ये लोग करते हैं. और उसके बाद उनको गिल्ट आता है. तो गिल्ट क्यों आता है? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं स्टैफिस एग्रीज सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस. फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? फिर उसकी वजह से उनको गिल्ट आता है. मोरल इंप्रेशंस है, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस है, उसकी वजह से फिर वो जो भी मैस्टरबेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी गिल्ट उनको फिर सताती है. सी एलिवेट फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस, company aversion to, desire for solitude, indulge her fancy to sexual fancies. So I think this single step है शायद इसमें. Then irritability, sexual excitement with, and impulse, morbid sexual, मतलब इतना impulsive behavior रहता है इनका सेक्सुअल चीजों के बारे में, तो वो उनको खुद को रोक नहीं पाते हैं. ओके, देन अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है. देखो, ऑन वन साइड इंटेंस सेक्सुअल डिजायर है, एंड ऑन द अदर साइड they are so shy, they are so timid that they cannot find a partner. Okay, so they are feminine men. Okay, सो ईगो भी रहता है इनमें. शाय है, टिमिड है, फिर भी ईगो भी है. ओके, सो सर हमेशा स्टैफिस एग्रिया को स्टिफिस एग्रिया बोलते हैं. तो इनको ज्यादातर बीमारियां मतलब ईगो की वजह से जो स्टिफनेस आता है, द रीजन बीइंग स्टिफ बिकॉज ऑफ ईगो, ऑनर एंड डिग्निटी. क्योंकि ये लोग झुकते नहीं है, एक तो ईगो की वजह से, एक तो ऑनर एंड प्राइड की वजह से, एंड तीसरा इज डिग्निटी. उसके वजह से ये लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से इनको स्टिफनेस आ जाता है. ओके, सो थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट स्टैफिस एग्रिया. एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ डाउट है, कुछ बोलना है, कुछ नहीं समझा है? हेलो, है ना सब लोग की गए? है. अच्छा, किसी किसको को है? कुछ क्वेश्चंस पूछना है? डॉक्टर नंदलाल साहू, आप कुछ मैसेज में बता रहे नहीं, थे, उनको कुछ तो आप ऐड करना है. किसी को ग्रुप में कुछ बोल रहे हो, केस के बारे में कुछ लिखा है क्या? इसके बारे में कुछ आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो. किसी को कुछ डाउट है या फिर कुछ आपको कुछ ऐड करना है तो भी बोल सकते हैं, मतलब अगर कुछ छूट गया है. और एक जो स्टेफिस एग्रिया के बारे में जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि उनको क्या बोलते हैं उसको, एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर,
ये रहता है ना, मतलब सोशल उनको पोजीशन अपनी फेम को अब लेके वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो उनको अपनी इमेज खराब नहीं करनी होती है, तो उसकी वजह से ये एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर। अच्छा, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर। तो थैंक यू डॉक्टर मानसी फॉर ब्यूटीफुल केस, और बहुत ही अच्छा केस और रिजल्ट था। रिजल्ट तो सबने हम लोगों ने देख लिया, बिफोर आफ्टर केस पिक्चर्स। तो स्किन डिसीजेस में रिजल्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट बहुत अच्छा यहाँ पे मैडम ने हम लोग को रिजल्ट दिखाया है। एनालिसिस बहुत अच्छा, इन डेप्थ हम लोग को रेमेडी जर्नी भी बताया, स्टैटिस एग्रिया के बारे में कुछ नए पॉइंट्स भी बताए। तो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मानसी फॉर टुडेज सेशन, and thank you everyone for joining. Thank you Liaquat sir and our PHF team for organizing such a wonderful series. और नवरात्रि चालू है, तो सबको हैप्पी नवरात्रि एंड एंजॉय। थैंक यू प्रिया, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू लियाकत सर, थैंक यू प्रिया, थैंक यू all my PHF team. Okay, bye bye. Bye.